Good morning and praise the Lord. आप सबों को शुभ दिन। My warmest greetings in the name of Jesus Christ. मेरे हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आप मेरे प्रिय दोस्तों को। Before I could begin, I want to thank beloved Pastor Sir. इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर जी को। I want to thank Brother Samuel मैं ब्रदर सैमुअल को धन्यवाद देना चाहता हूं for translating for me this morning. मेरे लिए अनुवाद करने के लिए, And I want to thank the congregation for being present here. और सारी सभा को, प्रभु की कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उपस्थित है। I was really encouraged by the way you praised and worshipped in the last 30 minutes. मैं बहुत ही उत्साहित हुआ ये देखकर कि किस प्रकार से कलीसिया ने आराधना और भजन के गीत गाए। It inspires me ये मुझे बहुत ही उत्साहित करती है and allows me to speak through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बोलने के लिए शक्ति देती है। As my father said, जैसे मेरे पिता ने कहा, I'm not a preacher. मैं एक प्रचारक नहीं हूँ, I'm a new student of the Bible, मैं एक विद्यार्थी हूँ बाइबल का, just like you. जैसे कि आप हैं। So I'm going to use my experience and rely on the Holy Spirit to speak something useful today. मैं अपने अनुभव को और पवित्र आत्मा पर निर्भर करूँगा कि कुछ आवश्यक जानकारी आपको मैं दे सकूँ। 1 Corinthians 2 verse 1 to 5 says, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 5 पद 1 to 5, Paul says, 1 से लेकर 5 तक, 2 अध्याय 1 से 5 तक। हाँ, Paul says, I do not have any clever speeches, पौलुस कहता है कि मेरे पास कोई वचन नहीं है ज्ञान की, but I'm going to use and depend on the Holy Spirit to speak to you. लेकिन मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर करता हूँ, प्रभु की सामर्थ पर निर्भर करता हूँ। And I pray that God uses my tongue the right way so that we have a blessed time for the next 30 or 40 minutes. और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु मेरे जीव को इस्तेमाल करे कि हम एक आशीषित समय यहाँ पर हम गुजार सकें। Before we can get into the scripture, let me pray a little bit. इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Our gracious Heavenly Father, thank you for this wonderful morning. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you for this congregation, Lord. As I speak from your word, Lord, I know that I'm nothing, Lord, without you. Use my tongue, use my wisdom, and let the Holy Spirit guide and speak through me, Lord. And let all the people who are listening, Lord, they be fruitful and be blessed, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Let's begin our scripture to Genesis 3 verse 6. आइए हम लोग उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 6 पद को हम मनन करेंगे। I'm going to read it in English and somebody can read it in Hindi. So when the women saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and the tree was to be desirable to make one wise, she took of its fruit and ate and also gave some to her husband who was with her, and he ate as well. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के चलिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। How many of us know about this story? I would आप में like से to कितने लोग हैं जो इस कहानी के विषय में जानते हैं? हाथों को उठाएं। Okay, thank you. धन्यवाद। So everybody pretty much who are sitting here know this story, right? About Adam and Eve. यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सब लोग जानते हैं आदम और हव्वा की कहानी। I've been told that most of you are new Christians. आप में से बहुत लोग नए मसीही हो सकते हैं। So I'm going to try to speak as much in detail so that you understand what I'm trying to say. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही बुनियादी बात आपके सामने रखूंगा कि आप समझ सकें। So before we can come to this point, I want to discuss a little bit about what happened before this. इस बात को हम चर्चा करने के पहले, इस विषय के पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में हम जरा सा सोचेंगे। So
The Father, the Son, and the Holy Spirit were all together in the very beginning. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि के पहले में सब उपस्थित थे। They were in love with each other and fellowshiped with each other. वो आपस में सहभागिता रखते थे और प्रेम रखते थे। So when God created the universe, the earth, through His Word, जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारे ब्रह्मांड को बनाया, every time He created something, He said it was good. हर बार जब प्रभु ने कुछ बनाया, सृष्टि किया, तो उसने कहा कि बहुत अच्छा है। Everything. The, हर एक heav- बात, the heavens, everything on the earth as well. स्वर्ग और पृथ्वी में भी जो चीजें हैं सब क्यों, It was good. वो सब कुछ अच्छा था। Before God could create human beings, इसके पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, He wanted everything on earth to be good and perfect. वो चाहते थे कि सारी सृष्टि बहुत अच्छी हो और सिद्ध हो। God was waiting to create human beings before He could create everything properly and nicely. इसके पहले कि प्रभु मनुष्य को बनाए, प्रभु चाहता था कि पृथ्वी को वो बड़े अच्छे तरीके से वो सजाए। And then God created human beings. उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया And finally, His vision was complete. और अंत में उसका जो दर्शन था वो पूरा हो गया। It was perfect. वो सब कुछ परफेक्ट था। If we open Genesis 2:15, अगर हम उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। if you could read it in Hindi. अच्छा, 2 का 15 ना। Genesis 2:15. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Humans were created to rule and take care of this earth. मनुष्य को प्रभु ने बनाया था कि वो इस पृथ्वी पर राज करें और इसका ख्याल रख सकें। All animals, all birds, all trees were under their dominion. सारे जानवर, सारे पक्षियां, सारे पेड़ पौधे उनके अंदर नीचे थे। And that is how He created Adam and Eve. और इस प्रकार से उसने आदम और हव्वा को भी बनाया। If we go to Genesis chapter 3, verse 4, अगर हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 4 पद में हम पढ़ेंगे। please go ahead and read. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। 3 का 4। 3, 4 and 5, please. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Everything was perfect. सब कुछ सामान्य था, परफेक्ट था। Adam and Eve were having equal fellowship with God every day. आदम और हव्वा बराबर रूप से परमेश्वर के साथ में सहभागिता रख पा रहे थे। And that is the first time the devil comes and speaks with Eve. और उसी वक्त पहली बार शैतान को मौका मिला कि वो आकर बात करे। What does he says? और वो क्या कहता है? In verse 4 and 5 he says, if you eat from this fruit, you will become like God. और 4-5 में हम देखते हैं उसमें लिखा है कि शैतान ने कहा कि तुम अगर इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Genesis 1:26 says, उत्पत्ति 1 का 26 में लिखा है। can you read it? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखें। God created human beings in his own image and likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वभाव में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। That was already established. He made humans like himself. उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। But Satan here is telling, you will become like God. लेकिन As शैतान आकर कहने लगा कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। lot of times, brothers and sisters in Christ, परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों,
lot of times in our life, what God has given us already, Satan is going to come and tell you that it's not there with you and you need to have it from somewhere else. बहुत बार परमेश्वर ने जो कुछ हमें पहले ही दे चुके हैं उस चीज को शैतान आकर बोलेगा कि वो चीज आपको मिलना है, बाकी है। And that is what is happening here. यहां पर वही बात हो रही है। God had created Adam and Eve in his own likeness, and Satan is coming and telling them, if you only eat from that fruit, you will be like God. शैतान आकर आदम और हवा को बोलने लगा कि तुम अगर इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। Whereas it's already been told, they were created in his own image and likeness, and they were fellowshipping every day. लेकिन उसके पहले ही वे लोग परमेश्वर के जैसे थे, उसकी समानता में बनाए गए थे और प्रभु के साथ सहभागिता रख रहे थे। That is the nature of the enemy we deal with today. ये Christians. शैतान का, ये उस दुश्मन का चाल है आज भी। If you go to Genesis chapter 2, verse 9. उत्पत्ति 2:9 को यदि हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। Where was the tree of life? जीवन का पेड़ कहां पर था? It was in the middle of the garden. वो उस बगीचे के, अदन की बगीचे के बीच में था। That means Adam and Eve could see that tree every day. उसका मतलब है कि आदम और हवा उसको हमेशा देख पाते थे, हर दिन। God told them not to eat from that tree. परमेश्वर ने उन्हें उनसे खाने को मना किया था। They would see that tree every day, वो उस पेड़ को हमेशा देखते थे, and they were never tempted to eat from that tree. लेकिन उसके फल को खाने के लिए कभी भी उनको लोभ नहीं हुआ। But unless Satan came and spoke to them, जब शैतान आकर उनसे बात किया, suddenly they are looking at that tree differently. अचानक से उस पेड़ को वे लोग अलग तरीके से देखने लगे। They are thinking from their heart. वो अपने मन में विचार करने लगे। Jeremiah 17:9 says, यिर्मयाह उसका 17:9 पद में लिखा है, the heart is deceitful. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। God had spoken to them and they believed in it and they were obedient to it. परमेश्वर ने उनसे बातें किया था और वे लोग परमेश्वर के लिए वो आज्ञाकारी थे। But when Satan started speaking to them, लेकिन जब से शैतान उनसे बातें करने लगा, they started listening to their heart. वो अपने मन के में आने वाले विचारों पर ध्यान देने लगे। And the Bible says the heart is deceitful. और बाइबल कहती है कि जो हृदय है वो धोखा देने वाला है। Brothers and sisters in Christ, प्रभु में मेरे प्रिय बहन भाइयों, we as humans and Christians, हम एक मनुष्य के रूप में या मसीही होने के रूप में with Christ we are born to rule and have dominion over the enemy. यीशु में हम पैदा हुए हैं कि हम सब चीजों पर राज करें, यहाँ तक कि उस दुष्ट पर भी, Especially Satan. विशेषकर शैतान पर। Bible says all the time through Christ we have dominion over Satan. बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शैतान पर अधिकार रख सकते हैं। Instead, Eve, when Satan came and approached him, जब हवा को जब शैतान ने आके उसे बहकाया, Eve was supposed to rule and shut down Satan. उसको चाहिए था कि वो उस पर राज करे और शैतान की बातों को जवाब दे। They shouldn't involve in a conversation with Satan, the devil. Eve was supposed to have dominion over the serpent, the snake. But हवा को चाहिए था कि वो उस सांप पर, शैतान पर अधिकार रखे। because that is what God had told them. यही चीज परमेश्वर ने उन्हें सिखाया था। But instead, Eve started speaking with Satan. लेकिन इसके छोड़कर वे लोग उस शैतान से बातें करने लगे। Brothers and sisters in Christ, मसीह में मेरे प्रिय बहन भाइयों, anytime we engage in a conversation with the devil,
जब भी हम शैतान के साथ बातें करना चाहते हैं, when we start speaking to him, जब उससे हम बातें करना शुरू करते हैं, instead of pushing him down, इसके अलावा कि उसको हम अपने जीवन से भगाएं, he will affect your heart and your choices will change. वो हमारे हृदय को प्रभावित करेगा और हमारे ये जीवन के इच्छाओं को वो बदलेगा। There was a time, for the longest time, Adam and Eve saw that same tree and they were not tempted to eat from that. बहुत समय से आदम और हव्वा उस बगीचे के बीच में उन पेड़ों को देख रहे थे, लेकिन कभी भी उन्हें प्रलोभन नहीं हुआ। But suddenly, when they are listening and starting to speak with the devil, लेकिन जब वो शैतान की बातें सुनने लगे और उनके साथ में चर्चा करने लगे, their eyes changed. उनकी आंखें अलग हो गईं। Suddenly, they wanted to eat from that tree. अचानक से वो उस पेड़ के फल को खाना चाहते थे। And what does verse 6 says? और छठवां पद क्या Genesis कहता है? 3:6. उत्पत्ति 3:6 में, I want to read it in English first. So when the women saw that the tree was good for food, delight to the eyes, and desirable. Good, delightful, desirable. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, अच्छा, मनभाऊ और चाहने योग्य। When you start to engage in a conversation with the devil, जब हम शैतान के साथ बातें करने लगते हैं, he is going to put in front of you which is good, delightful, and desirable. वो आपके सामने उन चीजों को रखेगा जो अच्छा है, मनभाऊ है और चाहने योग्य है। It might not be good, but it will look good. वो अच्छा नहीं होगा पर आपको वो अच्छा दिखाई देगा। That is the nature of the devil. ये शैतान का चाल है। So, brothers and sisters in Christ, I want to encourage you that a lot of times when evil thoughts or negative thoughts come in your mind, do not engage in that thoughts. जब कई दफे आपके मन में बुरे विचार या गलत विचार आते हैं तो आप उनके साथ में मत उलझिए। Because the moment you start to engage with it, he's going to show you doors and fruits that is going to be good in your eyes. जब आप उसमें उलझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपकी आंखों को ऐसा लगेगा जैसे वो अच्छा है आपके लिए। And that's the true nature of the devil. ये शैतान का असली स्वभाव है। I want to move on to a new story in 2 Samuel chapter 4. एक दूसरे विषय को हम जरा देखेंगे जो दूसरे शमूएल में पाया जाता है। Chapter 4, verse 4. 4 अध्याय उसका पहला पद। Can you read it, please? 4 का 1 ना? 4. 4 का 4, 4 का 4 पद। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातन का समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। How many of you know the story of Mephibosheth? इसमें से कितने लोग इसके विषय में जानते हैं? Okay, I'll tell you a little bit about it so that we मैं don't have इसके any बारे में confusion. थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूंगा। So Mephibosheth was the son of Jonathan, मपीबोशेत जो था यो योनातन का पुत्र था and Jonathan was the son of Saul. और योनातन शाऊल का बेटा था। We know that Saul was not happy with David. We know that Saul was not happy with David. He was jealous of David. हम जानते हैं कि दाऊद जो है, शाऊल जो है वो दाऊद के साथ में खुश नहीं था। He was jealous of him. वो उससे जलता था। He wanted to kill him. वो उसको मारना चाहता था। But Jonathan, लेकिन योनातन, he was really good friends with David. वो एक अच्छा मित्र था दाऊद का। Even though he was the successor to be the king, जबकि योनातन जो कि शाऊल का बेटा होने के नाते राजा बनने के योग्य था, but still he did not mind David being the king. लेकिन वो दाऊद से नहीं जलता था। So what happens is, if we go back in 1 Samuel to at the end of it, अगर इस पहले शमूएल के अंत में जाकर हम देखेंगे we see that Saul
and Jonathan, they fight with the Philistines, हम देखते हैं कि शाऊल और योनातान जो है फलिश्तियों के साथ लड़ाई कर रहे थे and they die in one of those battles. और उस लड़ाई में वो मारे गए, Both of them in the same battle. दोनों एक ही साथ मारे गए। And then David, after a series of events, was made the king of और Israel. उसके बाद में दाऊद को सारी प्रजा ने मिलकर राजा बना दिया। So now, back in the day, during those times, पुराने दिनों में so any new king who was throned, अगर कोई नया राजा को गद्दी मिलती थी so he would make sure that he kills every relatives and descendants of the old king. वो इस बात का ख्याल रखता था कि पुराने राजा के सारे वंशावली को वो मार डाले, So that they do not come and challenge him back some other time. ताकि किसी भी समय वो आकर उस राज्य गद्दी के विषय में वो लोग उसके सामने खड़े ना हो जाएं। But Saul and Jonathan both were dead. लेकिन शाऊल और योनातान दोनों मर चुके थे। As far as I am concerned, David thought that everybody from Saul's descendants were dead. दाऊद को भी लग रहा होगा कि शाऊल के सारे बच्चों में से सब नष्ट हो गए हैं। But David, if you read in several portions in Samuel, he never cared about death. लेकिन फिर भी अगर हम बाइबल को शामुएल में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि दाऊद कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता था। But Mephibosheth, लेकिन मपीबोशेत he was the only one alive. वही एकमात्र लड़का जो जिंदा रह गया था। He did not know the nature of David. वो दाऊद के स्वभाव को नहीं जानता था। So what happened when he was born and he was only 5 years old? जब वो पैदा हुआ और केवल 5 वर्ष का था, The people who loved him, जो लोग उसको प्यार करते थे, especially the nurse, विशेषकर जो धाई थी, she thought, if I do not rescue Mephibosheth from here, he is going to get killed by the hands of David. उसको लगा कि अगर मैं मपीबोशेत को रक्षा नहीं करती हूँ तो दाऊद आकर उसको मार डालेगा। Nobody knew the true nature of David. दाऊद के असली स्वभाव के बारे में वे लोग नहीं समझ पा रहे थे And for that reason alone, और इसी विषय के कारण she took Mephibosheth and was rushing, वो मपीबोशेत को लेकर दौड़कर भागी चली जा रही थी। and that's when she dropped him and he got crippled for life. और उसी समय उसने गलती से उसे गिरा दिया और वो लंगड़ा हो गया गिरकर, For entire life. पूरी जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। Imagine Mephibosheth waking up every day and thinking, I'm a king, a son of a king. आप सोच सकते हैं कि मपीबोशेत हर दिन सुबह उठता होगा और सोचता होगा कि मैं एक राजा का घराने से हूं, उसका बेटा हूं, But I'm crippled. लेकिन मैं लंगड़ा हूं। I was not born like this, मैं लंगड़ा पैदा नहीं हुआ था, but now nobody knows me. लेकिन आज मुझे कोई नहीं पहचानता है। I'm just a cripple who मैं is केवल एक लंगड़ा हूं where I'm staying in one corner of Israel. और इसराइल के किसी कोने में रहता हूं, Nobody knows about me. कोई मेरे बारे में नहीं जानता। I do not deserve anything good in life. मुझे कोई भी जीवन में अच्छी चीज पाने का कोई अधिकार नहीं है। I'm not deserving of good things in my life. मैं अपने जीवन में अच्छी चीजों को पाने के लिए कुछ अधिकार नहीं रखता हूं। Every day for several years he must be thinking that, yes or no. हर दिन हर सुबह वो शायद इसी प्रकार सोचता होगा। आप क्या सोचते हैं? I think he must be thinking that way, मैं correct? सोचता हूं कि वो कुछ इसी प्रकार का विचार रखता होगा। Satan again is working here, not शैतान यहाँ पर फिर से काम कर रहा है, through Mephibosheth, मपीबोशेत के द्वारा नहीं, but through nurses. लेकिन उसकी धाई के जरिए। I'm not saying nurse is evil, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि धाई बुरी थी, but they can use good human beings to take wrong actions. The devil can use good human beings to take wrong actions. लेकिन शैतान जो है अच्छे लोगों को भी इस्तेमाल करता है बुरे काम अपने काम को अंजाम देने के लिए। The fear that Satan put in that nurse's mind, उस धाई के मन में शैतान ने डर पैदा कर दिया, that's the reason she was rushing. इसीलिए वो भाग कर जा रही थी। She has no idea of the true nature of David.
उसको दाऊद के असली स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं था शायद। If she had any idea, अगर उसके पास किसी प्रकार का भी ये ध्यान होता, then the life of Mephibosheth would be completely different. तब उस मपीबोशेत का जीवन एक दूसरा ही कुछ हुआ होता। Maybe he would not have been a cripple. वो शायद लंगड़ा नहीं हुआ होता, Maybe he would have fought with David. लेकिन शायद वो दाऊद के साथ लड़ा होता, Maybe he would have defeated David. और शायद वो उसे हरा भी दिया होता। We don't know anything could have happened. हम नहीं जानते कि क्या कुछ हो सकता था, But because in that moment of weakness and fear, लेकिन उस डर और शंका के समय में that Satan put in that nurse's mind, जो शैतान ने उस धाई के मन में डाल दिया था, the life of a king's son changed. उस राजा के बेटे का जीवन बदल गया था। Two ways the devil can affect and influence our mind. दो तरीके हैं जिस प्रकार से शैतान हमारे मन को प्रभावित कर सकता है। With Eve, हवा के समय में he will tell you that what you have is not enough. वो आपको आकर बोलेगा कि जो आपके पास में है वो पर्याप्त नहीं है। And like Mephibosheth, और मपीबोशेत के विषय में he will tell you, you are not good enough. वो बताएगा कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, You are not deserving. आप कुछ अच्छा चीज नहीं पा सकते। So in first thing, you are going to think, what I'm supposed to get, I'm not getting it from God. पहली बार में हम देखते हैं कि हमको एहसास होगा कि हमें जो मिलना चाहिए हमको वो नहीं मिलने वाला है परमेश्वर के That's से। how Eve thought, that she's missing out on something. हवा ने भी ऐसे ही कुछ सोचा कि शायद कुछ चीज की कमी है उसके जीवन में, And Mephibosheth thought और उसी प्रकार मपीबोशेत भी सोच रहा था that even though there are good things from God, I'm a king's son, but I do not deserve to have it. कि परमेश्वर के पास में भली वस्तुएं हैं देने के लिए, और मैं एक राजा का बेटा हूं, फिर भी मुझे अच्छी चीज नहीं मिल सकती। This is the two ways that mostly, primarily, the devil attacks our mind. इस प्रकार दो बातों के द्वारा शैतान हमारे भी मन को आक्रमण करता He है। will make you ungrateful of the blessings of God. वो परमेश्वर के सारी आशीषों के प्रति आपको धन्यवादी नहीं रहने देता। Ungrateful like Eve. वो जैसे कि हवा के जीवन में हम देखते हैं, And then make you feel fear, confusion, shame, and trauma like Mephibosheth. आपको भय और चिंता और मपीबोशेत के जीवन में हम जैसा देख सकते हैं। I want to read 2 Timothy 1:7. हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 पद। लिखा है, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। 2 Timothy. अच्छा सॉरी, सेकंड दूसरा, एक मिनट। 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 पद यदि हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। I have gone through a lot of suffering in my life. मैं भी अपने जीवन में बहुत प्रकार के समस्याओं से गुजर चुका हूँ। My dad gave a very short testimony, मेरे पिता ने एक छोटा सा गवाही दिया, but my travel from being an engineer to be standing here is very long. लेकिन मेरा जीवन का जो दौर है एक इंजीनियर बनने से लेकर यहाँ तक खड़े होने तक बहुत लंबा रहा। I was fearful many a times. मैं बहुत बार डरता था। Satan has attacked me and told me I'm not good enough. शैतान मेरे मन में ये बात डालता था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। A lot of times Satan attacked me like he attacked Eve. कई बार शैतान हमारे मन को भी आक्रमण करता है जैसे उसने हवा के साथ किया। That time I used to feel ungrateful. उस समय मैं भी प्रभु को धन्यवादी नहीं था। I used to feel there are so many things that God is not giving me. मुझे लगता था कि बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा है। And sometimes, और कई दफे like Mephibosheth, मपीबोशेत के समय Satan would attack my mind शैतान मेरे मन को अटैक करता था। and he used to tell, you're not good enough. मुझे कहता था कि आप उतने अच्छे नहीं हो।
God is good. परमेश्वर अच्छा है, There is a lot of good things that He can give you, वो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें दे सकता है, but you are not good enough to receive it. लेकिन आप उतने अच्छे नहीं हो कि वो सबको प्राप्त कर सकें। And 2 Timothy 1:7 says, और दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, "For God has not given us a spirit of fear." हमें भय की, परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है। So I want to encourage everybody sitting here आज मैं सबको उत्साहित करता हूं जो यहाँ उपस्थित हैं, that when you have a mind of fear, जब आपके मन में इस प्रकार का भय का मन होता है, you are opening doors for Satan to come and attack अब your शैतान weakness. की सुन रहे हैं, You're opening doors for Satan to come अब and attack. दरवाजों को खोल रहे हैं कि शैतान आकर उसमें से आप पर आक्रमण करे। You have to be grateful आपको परमेश्वर को धन्यवादी होना है, for what He has given you in your life, उसने जो कुछ भी आपको आपके जीवन में दिया है, and you have to go boldly और आपको साहस के साथ जाकर for what He has not given but promised in the Bible. वो उसने जो चीज उसने नहीं दिया है लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा उसने आपसे बाइबल में की है, And that is the true nature of being a Christian. यही एक सच्चा मसीह होने का अर्थ है। To be grateful धन्यवादी होना and to be fearless. और निर्भय होना। I want to go to 2 Corinthians 2:11. हम दूसरा कुरंथी 2:11 हम देखेंगे। लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Let not be ignorant of his devices. हम शैतान की योजना से अनजान ना बने। Satan already knows शैतान पहले से जानता है what his destiny is. उसका अंत क्या है। He exactly knows what is going to happen to him. वो जानता है कि अंत में उसके साथ क्या होने वाला है, And he wants to take as many of us into his kingdom. और वो चाहता है कि हम में से बहुत लोगों को अपने राज्य में साथ लेकर चले जाए। That is his only victory. यही उसका एकमात्र योजना है, Because he knows that he is going to fail eventually. उसको मालूम है कि वो गलत है और उसका अंत बुरा होगा। Lot of times we think sinning is something very different. कई बार हमको लगता है कि पाप में जीवन बड़ा अच्छा लगता है, But lot of times when you're being ungrateful, you are worshipping Satan. अगर हमारा मन परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं है तो हम शैतान की बात सुन रहे हैं, उसका हम पूजा कर रहे हैं। When we are being fearful, we are indirectly worshipping Satan. हम जब डरे हुए होते हैं, चिंता करते हैं, तो हम शैतान की उपासना कर रहे होते हैं। Of course, as we live our life, we will be fearful once and twice. Of course, when we are living our life, we will be fearful few times. अवश्य है कि हम कभी कभार तो हम अपने जीवन में चिंता और हम कर सकते हैं, भय रख सकते हैं, That is very natural, it's okay. ये बहुत स्वाभाविक है। But to use that fear to constantly put it in your head and think like God is not with you, लेकिन लगातार इस बारे में चिंता करना और भय में जीना, that is indirectly worshipping the devil. वो शैतान की पूजा आराधना करने के समान है। It speaks opposite to what the entire Bible says. वो शैतान जो है बाइबल में जो लिखी बातें ठीक उसके विपरीत आपसे बातें करता है। In Genesis, उत्पत्ति में God had told, if you eat from the tree of life, you are going to die. परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम उस बुद्धि के पेड़ से खाओगे तो मर जाओगे। But when Adam and Eve ate that fruit, लेकिन जब आदम और हव्वा ने उसके फल को खाया, they did not die. वो मर नहीं गए तुरंत। God could have killed them, परमेश्वर चाहता तो उसे मार सकता था उन्हें, but He loved them so much. लेकिन उसने छोड़ दिया। But God loved both Adam and Eve so much लेकिन परमेश्वर आदम और हव्वा को इतना प्यार करता था that He did not let them die. कि वो उन्हें मरने नहीं दिया। But there has to be atonement for sin. लेकिन पाप का एक प्रतिफल होना है। So we go to Genesis 3:15. अगर हम फिर से उत्पत्ति उसका 15 अध्याय में देखेंगे, Genesis 3:15, if you could read. अच्छा, उत्पत्ति उसका 3:15 को अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में
बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। When God created heaven and earth, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की रचना की and when God created human, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, everything was perfect. सब कुछ एकदम परफेक्ट था। But because of this disobedience, लेकिन इस अनाज्ञाकारिता के कारण sin entered the world. पाप इस संसार में आया Now creation was imperfect. और सारा जो सृष्टि है वो बिगड़ गया। So in order to make it perfect, उसको फिर से परफेक्ट बनाने के लिए God made this promise with the devil. परमेश्वर ने शैतान के साथ में ये प्रतिज्ञा किया, I will bruise your head मैं तेरे सिर को कुचल डालूंगा and you shall bruise his heel. और तू मनुष्य के पैर को एड़ी को डसेगा। Since this day, उस दिन से लेकर God परमेश्वर have been trying to enter earth and fulfill this promise legally. वो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में वो घुसें और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करें। He used Abraham, वो अब्राहम को इस्तेमाल किए, he used Samuel, वो शमूएल को इस्तेमाल he किए, used Elisha, वो एलीशा को इस्तेमाल he किए, used Elijah, वो एलिया को इस्तेमाल he किए, used Isaiah, वो यशाया को इस्तेमाल he किए, used Jonah, Hosea, and n number वो of people. योना, उजिया और सब लोगों को इस्तेमाल किए। Finally, when he thought the time has come for me to enter this earth, और आखिर में जब उसने सोचा कि इस पृथ्वी में जाने का मेरा समय आ गया है, in order to fulfill this one promise, इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए he took the form of a flesh वो एक मनुष्य का रूप ले लिए and was born here as Jesus. और यीशु मसीह के रूप में यहाँ जन्म लिए। And that's how Christmas is celebrated. और इस प्रकार से क्रिसमस को हम मनाते हैं। And that is the true meaning of why Jesus came here, to fulfill this one promise in और 3:15. यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, इसका असली मतलब यही है, मकसद यही है कि इस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते थे। I want to give one more example before I can end my sermon. इसके पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं एक और एक बात मैं कहूंगा। Let's go to Matthew 4. हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में आएंगे। Can you read it, please? 1 to 11. 1 से हम अगर देखेंगे 11 तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। Okay. So here what's happening is Jesus, after being baptized, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद he has been led by the Spirit into the wilderness. वो पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में ले गए And he's fasting there for 40 days. और वो उपवास रहे 40 दिन और 40 रात। And the moment he's filled with the Spirit, और जिस समय वो पवित्र आत्मा से भर गए, and after 40 days, 40 दिनों के बाद Satan shows up in front of Jesus. शैतान जो है यीशु के सामने आ गया। And what's the first thing he says? और सबसे पहला चीज उसने क्या कहा? If you are the Son of God. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, If you are the Son of God. अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, I want to ask the congregation, do you think the devil knew that Jesus was the Son of God? क्या आप विश्वास करते हैं कि शैतान जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Do you think Jesus knew that he was the Son of God? क्या आप सोचते हैं कि यीशु जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है? Do you think that God knew that Jesus was Son of God? क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर जानता था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है? The last time that God spoke to Jesus आखिरी बार जब परमेश्वर ने यीशु से बातें किया on this earth, पृथ्वी पर, it's mentioned in Matthew chapter 3:17. ये मत्ती 3:17 में हम इस बात को देख सकते हैं। Just go back one page. एक पेज हम पहले जाएंगे। 3:17 ना जी। और देखो, ये आकाशवाणी हुई
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So God already declared that Jesus is the Son of God. तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही यह प्रकाश कर दिया था कि ये मेरा पुत्र है। Jesus already knew he's the Son of God. यीशु जानते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। Satan already knew that he was the Son of God. शैतान भी जानता था कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, But he still asks Jesus, लेकिन फिर भी वो यीशु से पूछ रहा है, Are you the Son of God? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? Imagine Jesus was God himself. आप सोचिए, यीशु परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर थे। If Satan can question God himself like that, अगर शैतान स्वयं परमेश्वर से प्रश्न कर सकता है, which he already knew, जो वो पहले से जानता थे, how much more will he attack our minds? वो कितना अधिक आपके मन को आक्रमण करेगा। He is always going to tell you वो हमेशा आपसे कहेगा that there is something missing in you. आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी है। He is going to say that you are not this. आप वो को आकर कहेगा कि आप ये नहीं हैं। Even though he knows that you have been bought by the blood of Christ, लेकिन वो जानता है कि आपने यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, but he is going to remind you लेकिन that आपको याद दिलाएगा, he is going to remind you of your shame. आपको आपके पापों को याद दिलाएगा, He is going to make you feel that you do not deserve something. आपको ये महसूस कराएगा कि आपको अच्छी चीजों के लिए आप काबिल नहीं हैं। And that is the true nature of Satan. शैतान का ये असली स्वभाव है। So I want to remember मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, that Jesus, when he was here, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, he came here as a human. वो यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में आए थे। He felt hunger. He felt hunger. उसे भूख लगती थी, He felt tired. उसको थकान महसूस होती He थी, needed money. उसे पैसे की जरूरत थी, He used to work as a carpenter. वो एक बढ़ई के रूप में काम करते थे, He was perfectly 100% human. वो एक 100% इंसान थे। And he came here as a human to show us that being a human, how to live your life. वो यहाँ पर इसलिए आए थे कि हमें दिखा सकें कि एक इंसान होने के नाते आपको किस प्रकार की जिंदगी जीनी है। All the pain and suffering that he went through during his ministry for 3 years on his earth, इस दुनिया में जितने भी दुख और दर्द और क्लेश उसने सहे पृथ्वी पर for 3 years 3 सालों के लिए, during his ministry, उसके सेवा के दौरान, it was completely as a human, वो एक इंसान के रूप में उन्होंने अनुभव किया था, so that he could show that we are more than capable of doing the same. ताकि वो हमें दिखा सके कि हमको और आपको भी इसी प्रकार से करना है। I know it's not easy, मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, but that is the true nature of being a Christian. लेकिन एक सच्चे मसीह होने का यही सच्चा अर्थ है, To understand God's voice and listen to him. परमेश्वर के आवाज को सुनना और समझना। The more you read the Bible, आप जितना बाइबल पढ़ेंगे, the more you know when Satan is speaking to you. आप उतना समझ पाएंगे कि कब आप शैतान आपसे बातें कर रहा है। The more you'll recognize God's voice. उतना आप परमेश्वर की आवाज को समझ सकेंगे। I want to go to Matthew chapter 7 verse 13. मत्ती का 7 अध्याय को हम देखेंगे। Can you read it please? 7:13. 7 का 1 13 पद हम पढ़ेंगे। जी। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। There are 2 doors, 2 gates. 2 दरवाजे हैं। When you engage in a conversation with devil, जब आप शैतान के साथ बातें करना पसंद करते हैं, you open a wide door. तो आप उसके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल देते हैं। He will show you good things that are to your eyes. वो अच्छी चीजें दिखाएगा जो आपकी आंखों को अच्छे लगेगी। You will feel like it is good. आपको ऐसा महसूस होगा कि वो सब बातें अच्छी हैं, It is harmless. वो नुकसान नहीं पहुंचाती। Once you enter that door, लेकिन एक बार जब उस दरवाजे में प्रवेश करेंगे, it leads to destruction. वो विनाश को पहुंचाता है। But there is a narrow door, लेकिन एक सकेत फाटक है, and that is where God speaks to you. वहां पर परमेश्वर आपसे बातें करता है।
And if you can recognize that door, अगर आप उस दरवाजे को पहचान पाएंगे, it might look like it's very narrow. I cannot get in it. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सकरा है, आप उसमें नहीं घुस सकते। But once you know it's coming from God, पर एक बार जब मैं जानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है, there is a new life waiting for you on the other side of एक that door. नया जीवन आपको दूसरे तरफ आपका इंतजार कर रहा है। Brothers and sisters in Christ, भाइयों और बहनों परमेश्वर में, I want to encourage you मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ that build a relationship with God कि परमेश्वर के साथ में एक संबंध बनाइए। where when a door is open in front of you, जब एक दरवाजा आपके सामने खुल जा रहा है, you can tell आप बोल सकते हैं whether it's a wide door कि ये चौड़ा रास्ता है from the devil शैतान की तरफ से, or if it's a narrow door कि ये सकेत फाटक है from God Himself. परमेश्वर की तरफ से। I know it's very hard, but the only way to recognize this is read the Word of God and see His promises for us. मैं जानता हूं कि ये बहुत कठिन है, पर मैं जानता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप इसका अंतर को महसूस कर पाएंगे। If you want to know the answers of life, जब आप जीवन के उत्तर को समझना चाहते हैं then read the Bible. तो बाइबल को पढ़ें। For the longest time, जितना सा देर तक आप पढ़ सकते हैं। in my life, for the longest time, मेरे जीवन में लंबे समय के लिए I had a lot of questions मैं बहुत सारे ईसाइयों से मुलाकात किया and I used to question God. और मैं परमेश्वर से प्रश्न करता था। Never read the Bible. बाइबल कभी नहीं पढ़ता था I never had the answers. और मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता था। So any door that was open in front of me, तो जब भी कोई दरवाजा मेरे सामने खुला रहता था, if it looked good, वो सब अच्छा ही महसूस होता था। if it looked good, अगर वो अच्छा लगता था I would enter through it. तो मैं उसमें चला जाता था। I had no idea whether it was from evil or from God. मैं ये नहीं जान पाता था कि वो शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से In है। my mind, मेरे मन में I was not sinning. I was not sinning. मुझे लगता था कि मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, But I was sometimes going in the wrong path. पर कभी कभार मैं गलत रास्ते में चला जाता था। And that was only because I did not know the promises made in the Bible for us. और ये इसीलिए होता था कि जो प्रतिज्ञाएं बाइबल में प्रभु ने हमसे किया है उसके बारे में अनजान था। And that is exactly what Satan wants you. और यही वो बात है जो शैतान आपके जीवन में चाहता है। In the wilderness, in the desert, जंगल में, मरुभूमि में, when Satan attacked Jesus जब शैतान ने यीशु को आक्रमण किया and questioned him, और उसको प्रश्न किया, Jesus replied him back every time. हर बार यीशु ने उससे जवाब दिया, He said, "It is written. ये चीज लिखा है, It is written." ये लिखा है। That means he knew the scripture. उसका मतलब है कि उस यीशु को वचन मालूम था। There is power in knowing the scripture. यही वो सामर्थ है जब हम वचन को जानते हैं। When you know the scripture, जब आप बाइबल को समझेंगे, Satan does not have an answer. शैतान के पास कोई उत्तर नहीं है, Then he has no choice उसके पास कोई चारा नहीं है but to run away from him. आपसे दूर भागने के अलावा। And that's what happened with Jesus in verse 11. और यही होता है यीशु के सामने, Because he constantly spoke from the scripture. यीशु बारंबार वचन से बोल रहे थे। Jesus Christ has shed his blood and crucified himself. यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है और क्रूस पर अपना जान दे दिया है। Let us not be ungrateful and be fearful and make that in vain. और हम लोग इस बात को व्यर्थ ना ठहराएं अपने डर और अविश्वास के कारण। It was the ultimate price anybody has paid on this earth. उसने सारा कुछ मूल्य चुका दिया है क्रूस में। When you're being ungrateful, जब हम धन्यवादी नहीं होते हैं, you're pretty much slapping Jesus on the face. हम यीशु मसीह के चेहरे पर हंस रहे होते हैं। When you're being fearful, जब हम डर रहे होते हैं, you pretty much are slapping Jesus on the face. हम यीशु को चांटा मार रहे होते हैं। I know this is not an easy life, ये आसान जीवन नहीं है, but Zechariah 4:6 says, लेकिन जकरिया उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। not by my strength, मेरी
बल से नहीं, not by my शक्ति से नहीं, but by the Spirit of God. पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। The Holy Spirit is going to help you in making all these decisions. पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा ये सारे निर्णय लेने के लिए। If you give your heart to Christ, अगर आप यीशु को अपने जीवन देंगे, suddenly all the questions that you have in your life, जो भी प्रश्न आपके जीवन में आपको उलझा रहे हैं, He is going to answer them. उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। And He's going to tell you परमेश्वर आपको बताएगा what doors to open, कि कौन से दरवाजे को खोलना है, what doors not to open, कौन से दरवाजे को नहीं खोलना है, what voice is from the devil, what voice is from the devil, कौन सी आवाज शैतान के द्वारा है and what voice is from God और Himself. कौन सी आवाज परमेश्वर की तरफ से है। I want to end this sermon by one verse. मैं आज का वचन को समाप्त करना चाहता हूं एक वचन के द्वारा। Jeremiah 33:3. यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 पद लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मेरी तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। You shall call me, and I will hear you, and I will show you mighty things that you do not know. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। Being Christian एक मसीह होने के नाते is a privilege. ये एक बहुत सौभाग्य है। Make sure you have full use of it. निश्चय रखिए कि आप इसका पूरा इस्तेमाल करें। He wants to show you mighty things that you are not aware of. वो परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थी कार्य करना चाहता है। Allow God to show that to you in your lives. आप परमेश्वर को ये कार्य करने के लिए इजाजत दें। Open your heart. अपने मन को खोलें। It's going to be difficult. Satan's going to attack you. ये मुश्किल हो सकता है, शैतान इसमें रोकेगा, But do not break away from it. लेकिन इससे आप पीछे ना हटें। For the last 1 week, I was actually planning to preach something else. मैं आखिर समय में दूसरा कुछ प्रचार करना चाह रहा था। For the last 1 week, I was prepared for something else. पिछले सप्ताह में कुछ दूसरे चीज को तैयार कर रहा था, But yesterday, लेकिन कल the Holy Spirit spoke to me that I should say something different. लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ प्रेरणा दिया कि मैं दूसरा कुछ बोलूं। So I actually prepared last night. तो कल रात को ही मैंने इस विषय को तैयार किया है। Satan was attacking me, शैतान मुझ पर आक्रमण कर रहा था, but I started walking, लेकिन मैं चलने लगा and then I had prepared this sermon. और मैंने ये वचन को तैयार किया। So same way, if you stand long enough, आप देर तक अगर खड़े रहेंगे, Satan is going to eventually lose. शैतान अंत में आपसे हार जाएगा। So stay strong and be patient and तो be मजबूत obedient. बनिए और धीरज रखिए। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।